Searching for relevant information on healthcare? Watch experienced medical professionals talk on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेरी सर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए सभी ट्रेंडिंग हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स को लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए, आपको अवेयर करने के लिए आवश्यक समाचार और विचारों को आपके ध्यान में लाना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के टॉप के डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं पीसीओएस की प्रॉब्लम के बारे में और इससे निपटने के तरीकों के बारे में। हेलो, दिस इज अपराजिता मेहरा एंड यू आर वाचिंग मेरी सर्कल। आज हमारी पीसीओएस अवेयरनेस सीरीज में हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर स्वाति राय। Dr. Swati Rai is a gynecologist, obstetrician, and laparoscopic surgeon in Noida and has an experience of 12 years in this field. Dr. Swati Rai, Aradhya Neuro and Gynae Clinic in Sector 50, Noida में practice करती हैं. She completed her MBBS from North Bengal Medical College and Hospital, Siliguri in 2010 and MS Obstetrics and Gynecology from Tripura University in 2015, where she also won a gold medal there. So, she aims to increase awareness regarding cancer cervix prevention, PCOS, adolescent health, and focuses on the overall well-being of women, for which she is widely associated with renowned hospitals such as Cloud9, Fortis, and Motherhood. बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ आज डॉक्टर स्वाति राय जुड़ रही हैं। सो आपका स्वागत है मेरी सर्कल में मैम। हाउ आर यू टुडे? Thank you so much, dear. I am very well. And it's a very good initiative that you people have started. I very much believe in awareness because when the awareness will be there among people, तभी पता लग पाएगा diseases के बारे में और हम prevent कर सकते हैं. As prevention is always better than cure. Absolutely. और जब आपके जैसे खुद जागरूक डॉक्टर हमें मिल रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो दर्शकों को जानकारी मिलना बहुत ही आसान हो गया है। तो आज पहला प्रश्न है मेरा आपसे कि व्हेन इज पीसीओएस डेंजरस? ये कब खतरनाक बन जाता है? See, PCOS is a disease. I'll just brief about that first. It is very common. ये सबसे common endocrinopathy है females में, reproductive age females में, और आज की डेट का तो ये एक epidemic बन चुका है. It's like a modern epidemic, you can say. Every 1 in 5 females in India is having PCOS. It is so common. So जब ये initially start होता है, menstrual irregularities के साथ start होता है, तो बहुत दिक्कत नहीं करता. But once it becomes long standing, ये बहुत लंबे time तक आपकी body में है और ये disease जाती नहीं है, रहती है, then it becomes a problem. Now क्या क्या problems हो सकती हैं? First is infertility. एंड डेंजरस प्रॉब्लम्स इसमें ये हैं कि इसकी पैथोलॉजी है इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो ये बॉडी में इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कराता है और डायबिटीज भी करा देता है, इवन टाइप 2 डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हाइपरटेंशन, पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये सब के साथ इसका एसोसिएशन होता है व्हेन इट बिकम्स लॉन्ग स्टैंडिंग. सेकेंड थिंग इज इस डिजीज में पीरियड्स की रेगुलरिटी होती है, पीरियड्स आते नहीं, तो बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज्यादा रहता है. This causes endometrium, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसे हम endometrium बोलते हैं, उसको hyperplasia, उसको बढ़ा देता है. Even it can cause endometrial cancer. और अभी जो latest emerging evidences आ रहे हैं, that they say that PCOS patients are also at risk of breast cancer and ovarian cancer as well. So that is the reason जब PCOS girls आती हैं हमारे पास, we do the annual checkup because these are the females जिनके अंदर risk है later on in life, इनको ये सब हो सकता है. And during pregnancy भी ये dangerous बनता है क्योंकि pregnancy जब होती है इन females में, they are at increased risk of diabetes during pregnancy, जिसे हम बोलते हैं gestational diabetes mellitus, as well as preeclampsia, hypertension during pregnancy. So it is that risky. काफी सीरियस कंसर्न है और आजकल के काफी यंगस्टर्स में ये हम सुनने को हमें मिल रहा है. और ऐसे में आपने बताया सिंस इट्स हार्मोनल बेस्ड, काफी इसका रीजन हार्मोनल है, तो ऐसे में जितनी आपने और ढेर सारी बीमारियां बताई हैं जिनके आगे संभावना बढ़ जाती होने की, मैं इसके साथ ही पहले पूछना चाहूंगी कि ये पीसीओएस क्या कभी अपने आप गायब होता है? डज इट डिसअपियर ऑन इट्स ओन फॉर एनी फीमेल?
See, any metabolic disorder, कोई भी chronic disease disappear नहीं होती हमारी body में से. Similarly, is PCOS. That is why it should not be neglected. The only thing is, ये disease बहुत mimic करती है. Actually, PCOS आजकल बहुत studies आ गई हैं कि in utero भी पता लग सकता है. इसका फैमिलियल इंसिडेंस भी है कि अगर मदर में है तो चांसेस है उसकी बेटी में भी पीसीओएस होगा, सिस्टर्स में भी पीसीओएस हो सकता है. सो व्हाट हैपेंस व्हेन द गर्ल इज यंग, नॉर्मली यंग गर्ल्स जब प्यूबर्टी वाले फेज में होती हैं उनके पीरियड्स इरेगुलर होते ही हैं, एक्ने होता है. आप भी याद करो आपके यंग पीरियड में एक्ने की प्रॉब्लम होती थी, राइट? Everybody had pimples. Yes. So that is the reason they are not diagnosed. 50% of PCOS girls are not diagnosed क्योंकि जो मिमिक कर रहे हैं normal puberty changes. So it is missed during that time. Full flare PCOS 30 years reproductive age में आता है. And so many of the patients जब उन्हें infertility की problem आ जाती है तब वो हमारे पास आते हैं. But it is seen that with the time जब वो 40 years 50 years में पहुंचती हैं तो hormonal changes आने लगते हैं, plus जो ये ovulatory problem है ये थोड़ी बहुत ठीक हो जाती है. And once they reach menopause, मतलब आपके periods बंद हो गए, जब आपके मासिक बंद हो जाते हैं तो उसके बाद पीरियड इरेगुलरिटी रहती ही नहीं है. लेकिन दे आर ऑलवेज एट रिस्क, जो मैंने बताया कि पीसीओएस पेशेंट्स में डेंजर्स हैं, उनके रिस्क उससे हमेशा बने रहते हैं. दैट इज द रीजन दे शुड ऑलवेज अंडरगो स्क्रीनिंग टेस्ट. वी शुड नेवर निग्लेक्ट दीज पेशेंट्स. और इनका लॉन्ग टाइम, मेरे जितने पीसीओएस पेशेंट्स हैं हम लॉन्ग टाइम उनका एक स्क्रीनिंग टेस्ट कराते रहते हैं बिकॉज दे आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज. तो शुगर के टेस्ट और बीपी के टेस्ट और कुछ और एक जांचें होती हैं जो इनको बार बार हर साल या 3 साल पे करा लेनी चाहिए. ओके, तो बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने कि मोस्टली विमेन ये सोचती हैं कि रेगुलर पीरियड्स तो भाई पीक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के होते हैं और अभी हमारा तो मेनोपॉज है या हम तो अब रुक गया है. एंड दे नॉर्मली थिंक कि अब क्योंकि उसके सिम्टम्स उतने दिख नहीं रहे हैं तो उनके ये हो सकता है कि ये मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए कि अब वो क्योर हो गया है और अब कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकती है. बट इट कुड स्टिल बी देयर एज अ साइलेंट किलर और किसी और भाग को इफेक्ट कर रहा हो सकता है अगर उन्हें पहले ये रह चुका है तो. So I think, and I want to add one thing, Aprajita, as you use the word silent killer. Nowadays, many people there are a lot of therapies for PCOS. जैसे periods ठीक होने लगते हैं लोगों को लगता है सब कुछ ठीक हो गया है, but no, this disease it is an ocean. इसमें बहुत सारी चीजें और हैं. So अगर सिर्फ period ठीक हो रहा है, that doesn't mean हमारी body से PCOS निकल गया है. We are always at risk of the things that I have explained. Absolutely, that is what exactly I was pointing at, कि वो अंदर छुपी हुई बीमारी है कि ऐसी है कि और शरीर के और अंगों को इफेक्ट कर रही है अंदर अंदर और हम सोच रहे हैं कि पीरियड्स नहीं हो रहे हैं तो अब ठीक हो गया है. तो इसके चलते मुझे लगता है कि सभी दर्शकों को काफी सचेत रहने की जरूरत है. अगर आपको पीसीओएस कभी भी रहा है, चाहे वो एडोलेसेंट में हो चाहे वो आपको थोड़ा बड़े होने पे पता चला हो, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एज द डॉक्टर सेड. So ma'am, can PCOS be cured? क्या ये ठीक हो सकता है पूरी तरह? Actually, we can maintain it. Like, for example, I said it is a metabolic disorder, it is an endocrine disorder. जैसे diabetes होता है, उसी तरीके से इसको हम मेंटेन कर सकते हैं. इसका जो मैनेजमेंट है वो हमेशा शुरू होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से. सबसे पहले नेचुरोपैथी, लाइफस्टाइल चेंजेस आर ऑलवेज बेनिफिशियल इन एनी क्रॉनिक डिजीज. सो हमें अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, डाइट मॉडिफाई करनी है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट होनी चाहिए, मेजर प्लस माइनर मील्स, वी शुड हैव स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स. थर्ड थिंग इज एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है पीसीओएस के पेशेंट्स में. There are 2 types of PCOS, obese and lean, मोटों में और पतलों में. तो बहुत पेशेंट होते हैं जो बोलते हैं मैम मैं वैसे ही पतली हूँ, आप क्यों वेट लॉस करने को बोल रहे हो? So it's not about weight loss. Actually, when you do exercises, any kind of exercise, basically aerobic exercise, so ये बॉडी का जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको कम करती है, जो कि इस डिजीज की पैथोलॉजी है. Right. So that is how even in lean PCOS, पतलों में भी एक्सरसाइज का बहुत अच्छा रोल है. So we always start with lifestyle modification, then we go to the medicines. Medicines के अंदर क्या आता है, हम लोग कुछ ड्रग्स देते हैं, कुछ दवाइयां होती हैं जो पीरियड्स रेगुलराइज करती हैं. अब one size does not fit all, so it is not necessary कि इस पेशेंट को वो PCOS की दवाइयां काम कर रही हैं वो दूसरे को भी करेंगी. Every girl is different and सबकी नीड अलग होती है. किसी को
अभी प्लान करनी है प्रेगनेंसी, कोई बहुत यंग एज में है. सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशंस फॉर ऑल द गर्ल्स एंड डिफरेंट मेडिसिन. अगर प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी तो हम कुछ और दवाइयां देते हैं. प्लस इस बीमारी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है मेल हार्मोन इंक्रीज होने का. सो इट कॉजेज hirsutism. Hirsutism मीन्स इंक्रीज फेशियल हेयर ग्रोथ, एक्ने के फीचर्स आ जाते हैं. सो उसके अंदर अलग मेडिसिन आती हैं जो इसको भी हेल्प आउट करती हैं. एंड lastly, to reduce this insulin resistance, in some patients हम metformin भी ऐड करते हैं. Patients बोलते हैं मैम ये तो डायबिटीज की दवा है, but actually it helps in PCOS patients. So this is the overall treatment, and that's all. Yeah. So important is कि हर लड़की दूसरे से अलग है और there is no standard treatment for anyone. But कंट्रोल में इस बीमारी को किया जा सकता है. It could be managed well. और इसलिए आपका खुद जाकर अपने केस को दिखाना और डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयां और अपना मेंटेनेंस रखना बहुत जरूरी है. तो हम पहुंचते हैं अपने इंटरव्यू के आखिरी प्रश्न की ओर और मेरा अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा मैम कि ये पीसीओएस का कोई से संबंधित अगर कोई पेन होता है तो वो नॉर्मली कौन से भाग को इफेक्ट करता है, कहाँ लोकेटेड होता है? सी ओवरऑल पीसीओएस पर से कोई पेन नहीं कराता. ठीक है, होता क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे लोग बोलते हैं अल्ट्रासाउंड का एक फीचर है कि मैम पॉलीसिस्टिक ओवरी आ गई है तो हमें पीसीओएस है. जरूरी नहीं हर पेशेंट में पॉलीसिस्टिक ओवरी हो. एक्चुअली ये जो सिस्ट होते हैं ये क्या होता है, फॉलिकल्स ही होते हैं जो आपकी अंडेदानी के अंदर अंडे हैं. ठीक है, फॉलिकल्स हैं, ये ग्रो नहीं हो पाते पूरी तरीके से तो छोटे छोटे बन के रह जाते हैं. एंड दे गिव अ ब्यूटिफुल पर्ल नेकलेस अपीयरेंस. सो अल्ट्रासाउंड के फीचर में पर्ल नेकलेस, पर्ल के नेकलेस की तरह ये दिखते हैं. So it is called pearl necklace appearance. Sometimes these cysts can become enlarged. ये बड़े हो सकते हैं. ये cysts जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो ये pelvic pain कराते हैं. नीचे की तरफ पेन हो सकता है lower part of abdomen में. So if you are having some amount of pelvic pain, backache, there can be a big cyst. But अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पुटअप किया है कि अगर पेन बहुत ज्यादा है सो वी हैव टू रूल आउट अदर डिजीजेस. पीसीओएस के पेशेंट में पर से कभी बहुत ज्यादा पेन नहीं होगा. अगर हो रहा है तो उनमें अंडरलाइन एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है. दिस डिजीज हैज एसोसिएशन विद एंडोमेट्रियोसिस आल्सो. दिस इज वन अदर गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर. तो अगर बहुत पेन है प्लीज रूल आउट ऑल द अदर थिंग्स. तो ये पेन किसी और चीज की वजह से हो सकता है. ओके, तो एक्चुअली पीसीओएस में अपनी तरफ से कोई पेन नहीं होता. जितने भी सिम्टम्स हैं वो आपने शुरुआत में ही बताए थे और उन्हीं से हम थोड़ा सचेत हो जाते हैं कि पीसीओएस हमें हो सकता है. एंड नेचुरली वी मस्ट सीक अ स्पेशलिस्ट देयर और आपके जैसे किसी गायनेकोलॉजिस्ट से ऑब्स्टेट्रिशियन से हमें मिलना चाहिए और इसकी पूरी स्क्रीनिंग करानी चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अदर देन दैट, जैसा कि आपने बताया कि कोई अगर बहुत ही सीवियर पेन है तो जरूर उसमें अंडरलाइन कुछ और कारण हो सकता है. एंड देन अगेन उसके लिए भी आवश्यक है कि आप स्क्रीनिंग कराएं, उसे समय पे डायग्नोज करें ताकि उसके सही समय पर उसकी रोकथाम और उपचार किया जा सके. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वाति, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी सारी जानकारी बहुत ही कम समय में बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की. तो मैं पूरी मेरी सर्कल की टीम की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ. इट वाज रियली अ प्लेजर हैविंग यू टुडे. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच अपराजिता एंड द होल मेडिकल सर्कल टीम फॉर इनवाइटिंग मी हियर.